Hello students, today I am going to discuss the delete operation from a linked list. In the previous video we have already discussed the how to implement a linear linked list. So in this video we will discuss two algorithms. The first one is a delete operation, the delete first node from a linear linked list, and another one is a traversing operation. So what is a linked list? As you know, linked list, it is a collection of a homogeneous node, and each node consists of two type of field, information field and an X address field. Now the uh, first node contain the address of second node, and second node keep the address of third node, and third node keep the address of fourth node. And the entire linked list is accessed by the head, and the last node contain null. Okay, so this is linked list. Now, how we can delete a first node? That is a first node. It means in this example that is 17. So before going to delete, first you check the underflow condition. So the first step of your algorithm will be check the underflow condition. If linked list is empty, then do nothing. Okay. So if head is equal to null, then display your linked list is empty and go back without doing anything. Otherwise, you can follow the next steps. Step number 2, first you assign a pointer to the first node. Okay, सबसे पहले आप पहले नोड के ऊपर अपने एक पॉइंटर को असाइन करेंगे like this. Okay, it means the address of first node आपने किस में ट्रांसफर किया? That is a PTR. PTR में आपने उसमें ट्रांसफर कर दिया. Now move the head pointer to next node. Now you can move head. Head को आप forward direction में आगे बढ़ा सकते हैं. So head is equal to head next. Okay. Now you have address of first node in PTR. So with the help of free function, you can deallocate that memory which is associated with this pointer. So free the space associated with PTR pointer. So free PTR. ओके, सो आपका जो मेमोरी मैलॉक फंक्शन की हेल्प से पहले एलोकेट हुआ था, अब ये दोबारा से डी एलोकेट हो गया. इट मींस हीप को रिटर्न हो गया सो दैट सेकंड एप्लीकेशन इसको यूज कर सके. नाउ एंड देन टास्क इज ओवर, एग्जिट. नाउ आई एम गोइंग टू द कोडिंग पार्ट. नाउ दिस इज द फंक्शन. सो entire linked list, here you can see that this is the entire linked list. Now start with this curly bracket. Now this is a pointer. Okay, and the variable is y. हम चाहते हैं कि जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है जिसको हम डिलीट कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को मेन फंक्शन में रिटर्न करें. दैट्स व्हाई वी यूज वेरिएबल y. नाउ इफ लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी, सो डू नथिंग एंड देन गो बैक, रिटर्न -1. मेन में अगर -1 आता है इट मींस लिंक्ड लिस्ट वाज एम्प्टी. इफ हेड इज नॉट इक्वल टू नल, देन फॉलो दिस वन. तो फर्स्ट यू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट नोड. पहले नोड का जो इंफॉर्मेशन है वो आप y के अंदर स्टोर कर सकते हैं इस एरिया में. ओके, नाउ आफ्टर दैट आप एड्रेस स्टोर करेंगे फर्स्ट नोड का एड्रेस ptr के अंदर. सो ptr इज इक्वल टू एस्ट्रिक्स हेड, और हेड को एडवांस करेंगे, हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट, एंड देन फ्री करेंगे आपने जो मेमोरी PTR के अंदर स्टोर की है. ओके, सो डीएलोकेट हो गया एंड देन रिटर्न करिए वैल्यू को y. नाउ एंड ऑफ दिस एल्स पार्ट, एंड ऑफ योर फंक्शन. नाउ दिस इज द मेन पार्ट. ओके, लिंक लिस्ट को हमने क्रिएट करने का मेथड और एक्सप्लेनेशन प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. सो दिस इज योर हेड. राइट नाउ दिस इज एम्प्टी लिंक लिस्ट. नाउ इंसर्शन फंक्शन को हमने कॉल किया, इंसर्शन एट लास्ट. ये सारा एक्सप्लेनेशन हमने प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है किस तरीके से लिंक लिस्ट क्रिएट हुआ. नाउ कम टू वंस अगेन कि किस तरीके से ये क्रिएट हुआ था. नाउ कंपाइलर डू समथिंग हियर. कंपाइलर क्रिएट some byte memory location for head. Okay, suppose the address is 1000, content is right now nothing. Now initialization, if head is equal to null, it means linked list is empty. Now इंसर्शन एट लास्ट फंक्शन कॉल किया तो हीप एरिया में विद द हेल्प ऑफ malloc फंक्शन आपका एक नोड क्रिएट होता है.
Now the address of this node is assigned to head. So you can see here the reflection. Okay, so आप देख सकते हैं यहाँ पर this one. So ये एड्रेस आपका यहाँ पे असाइन हो गया. It means it will point to this area. Okay, this one. So यहाँ पे लिंकिंग हो गया आपका हेड के पास में फर्स्ट नोड का एड्रेस है. Now after that if you call second time this function, so compiler once again create some byte memory location and the address number that is 8996 will assign to in this area like this. Okay, it will point to this one. Now third time if you call the same function, आप तीसरी बार इसको कॉल कर रहे हैं, so हीप एरिया से आपको एक मेमोरी एलोकेट हुआ और इसका एड्रेस आपने असाइन किया लास्ट फील्ड में, नेक्स्ट फील्ड में. ओके, सो इट विल पॉइंट टू दिस वन. नाउ फोर्थ टाइम कॉल किया, सो हीप एरिया में मेमोरी क्रिएट हुआ और आपने एड्रेस 8988 इसमें असाइन किया, सो इट विल पॉइंट टू दिस वन एंड द लास्ट नोड कंटेन नल. ओके, सो ये लिंक लिस्ट आपका क्रिएट हुआ. नाउ कम टू delete function. So if you call delete function, so here you pass the address of head. It means head का address कितना, that is a 1000. So 1000 आपका यहाँ पर जाएगा कैपिटल H में. So कंट्रोल आपका मेन से जंप करके जहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन है वहाँ पे जाता है. Now compiler create some byte memory location, okay, in stack area and the content is 1000. क्योंकि आपने यहाँ पे ampersand head, it means the address of head पास किया, so this is 1000. Now this is the local variable that is a ptr. Okay, so ptr and right now it is a pointer, structure type of pointer, content is nothing. Now integer y, so topmost element की value को हम y के अंदर यहाँ पे store करेंगे. Okay, so right now content is nothing. Now first you check linked list is empty or not. It means आप h की वैल्यू को चेक करेंगे. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, दैट इज 9000. आप देख सकते हैं दिस 9000 एंड 9000 इज नॉट इक्वल टू नल. इट मींस आप इफ ब्लॉक में अलाउड नहीं है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा. आप कहाँ पे जाएंगे, एल्स ब्लॉक में एग्जीक्यूट होगा. सो कंट्रोल जंप करेगा एल्स लाइन. द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट यू स्टोर द टॉप मोस्ट एलिमेंट, टॉप मोस्ट इंफॉर्मेशन, यानी कि जो फर्स्ट नोड का जो इंफॉर्मेशन है वो आप y के अंदर स्टोर करेंगे. इट मींस हियर, सो y, सो वैल्यू इज 17. ओके, फर्स्ट नोड का इंफॉर्मेशन 17 जो है वो स्टोर हो गया आपका y के अंदर. नाउ फर्स्ट से आफ्टर दैट यू असाइन पॉइंटर टू फर्स्ट नोड. सो ptr इज इक्वल टू व्हाट, द एस्ट्रिक्स h. इट मींस द वैल्यू एट 1000 एड्रेस के ऊपर वैल्यू कितना है, दैट इज 9000. वो कहाँ पे असाइन किया, पीटीआर में. सो पीटीआर के कंटेंट कितने होने वाले हैं, दैट इज 9000. सो इट मींस इट विल पॉइंट टू दिस एरिया, फर्स्ट नोड को ये पॉइंट करेगा. सो आपके यहाँ पर एक पॉइंटर आपने असाइन किया. नाउ यू कैन मूव हेड टू नेक्स्ट लोकेशन. अब आप हेड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ा सकते हैं. ओके, सो हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट. सो हेड के पास अभी एड्रेस कितना है, दैट इज 9000 और हेड नेक्स्ट का वैल्यू कितना है, 8996. इट मीन दिस वन. सो दिस एड्रेस इज असाइन टू इन दिस एरिया. तो यहाँ पे आप रिफ्लेक्ट करेंगे 8996. सो आपका ये पॉइंटर जो है वो डिलीट हो जाएगा. अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, सेकेंड नोड को, लाइक दिस. ओके, नाउ आपकी लिंक लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होती है, सेकेंड नोड से. बट व्हाट अबाउट दिस वन, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें डीएलोकेट करना है. इस मेमोरी को दोबारा हीप में रिटर्न करना है. So call free function. So free function deallocate the memory associated with PTR. So ये remove हो गया यहाँ से. Okay, और ये दोबारा से हीप में रिटर्न हो गया, so that हम किसी और एप्लीकेशन के लिए इस एरिया को यूज कर पाए. Now the after that return the deleted item. So deleted item it means y के अंदर आपने ऑलरेडी 17 स्टोर किया, यहाँ से तो ये डिलीट हो गया, बट आपने सेव किया था इसको 17 के अंदर. So it will return to your main function. So 17 will return to here. Okay, and task is over. तो आपका लिंक लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, हेड से. Now this is your first node and first node contain the address of third node contain the address of
फोर्थ नोड, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो पहला नोड था वो डिलीट हो चुका है. ओके, now come to the traversing part. So how we can traverse algorithm? So it is also so simple algorithm. So pass the linked list, the value. Now first you check the status of linked list. Linked list is empty or not. If linked list is empty, then do nothing. Okay, otherwise follow the next step and repeat next step 3 and 4 till the end of linked list. जब तक आपका linked list end नहीं होता, आप next steps को follow करते रहेंगे. So the step number 3, आप सबसे पहले जहां पे भी हैं उस नोड को आप विजिट करेंगे, प्रोसेस करेंगे. ओके, एंड देन हेड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे. ओके, यहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया एंड देन मूव हेड पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड. हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट. Okay, so these 3 and 4 steps are the part of this while loop. तो ये रिपीटेशन में चलते रहेंगे स्टेप 3 and 4 जब तक कि हेड नल नहीं होता. सो वेन एवर हेड इज नल, इट मीन्स योर टास्क इज ओवर. आपने पूरी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स किया हुआ है. लेट अस सी किस तरीके से कोड एग्जीक्यूट होगा. ओके, सो दिस इज द एल्गोरिथम. ओके, एंड वेरिएबल इज LOC. ओके, इफ हेड इज इक्वल टू नल, it means do nothing. Your linked list is empty, otherwise do something. So first you assign LOC to head. एक लोकेशन आपने एक वेरिएबल लिया है. वैसे इसकी आपको जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपने कॉल बाई वैल्यू यहाँ पे पास किया है, तो आप LOC को अवॉइड भी कर सकते हैं. बट सिंप्लिसिटी के लिए हमने यहाँ पे LOC को यूज किया है. नाउ LOC को आपने हेड के ऊपर असाइन किया. नाउ व्हाइल LOC इज नॉट इक्वल टू नल, देन डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑन योर स्क्रीन. इट मीन्स आपने उस नोड तक पहुंच चुके हैं. वहां पे आप कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. आप पहले नोड को ट्रेवर्स कर चुके हैं एंड सेकेंड नोड को ट्रेवर्स करने के लिए को LOC फ्रॉम LOC नेक्स्ट. आप जंप करेंगे लोकेशन पॉइंटर को नेक्स्ट नोड के ऊपर. ओके, चेक LOC नल होता है नहीं. नाउ सेकेंड नोड को डिस्प्ले करेंगे और आप थर्ड नोड के ऊपर जंप करेंगे. LOC इज इक्वल टू LOC नेक्स्ट. और ये प्रोसेस तब तक रहेगा जब तक आपकी पूरी लिंक लिस्ट एंड नहीं होती. Okay, so this is the main function. This is head. Okay, now linked list is empty. Now so first we create a linked list. Definitely हमने इसको पहले वीडियो में पहले ही डिस्कस किया है, अभी भी डिस्कस किया था. So insertion at last 17, 10, 21 and 50 and then traverse algorithm. तो कंपाइलर आपका स्टार्ट करेगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा कहाँ से? फर्स्ट लाइन से. So the first line is this one. Now compiler create some byte memory location, suppose 1000. Content is nothing. Right now the content is null. It means linked list is empty. Now first time you call this function insertion at last. So heap area में आपका एक node create होगा. Address आपने वहाँ पे assign किया. Now second time it create होता है. Address 8996 आप कहाँ पे assign करेंगे? इस area में. So in this way आपका linked list जो है वो create हो गया. Okay, according to this instructions, and last node contain the null. So linked list is over. Now come to traversing part. आपने यहाँ पे क्या पास किया है? Not ampersand head. आपने पास किया है head. It means 9000. So control कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे function का definition है, and here is parameter capital H, and what will be the content? That is a 9000. Now another variable is location. So location, right now the content is nothing. First you check a linked list is empty or not. It means H की value को check करिए, that is a 9000. So okay, so this is 9000 is not equal to null. It means else block execute होगा, statement आपका false है. Now LOC is equal to head. It means head के जो content है, head की जो value है वो आपने LOC में assign की. It means 9000 को आपने copy किया LOC में, this one. So LOC is a pointer which point to this area because 9000 is this, the address of first node, like this. Okay, first you check while LOC is not equal to null. जब तक LOC का value null नहीं होता. Right now LOC is 9000. Okay, then print the information. So information is 17. So 17 को screen के ऊपर आप print करेंगे. Okay, और LOC को forward direction में आगे बढ़ाएंगे. LOC is equal to LOC next.
तो आप देख रहे होंगे एलओसी का वैल्यू इस बार 9000 है। अब इसमें क्या आने वाला है नेक्स्ट 8996 बिकॉज दिस इज एलओसी नेक्स्ट, दिस एंटायर थिंग इज एलओसी, एलओसी का नेक्स्ट इज 8996। सो 8996 किस में असाइन कर रहे हैं, एलओसी में। सो एलओसी का वैल्यू यहाँ पे अपडेट मिलेगा आपको, यहाँ पे इट विल 8996। इट मीन्स दिस पॉइंटर इज डिलीटेड और आपका पॉइंटर एसोसिएट हो गया नेक्स्ट नोड के साथ में, ओके, नेक्स्ट एरिया के साथ में। नाउ चेक क्या एलओसी नल है राइट नाउ, दिस इज 8996, आप देख रहे होंगे जहां पे पॉइंटर है, दिस इज 8996, ओके। सो चेक, oh this is not equal to null, then display the information, yeah this entire thing is LOC, LOC का information is 10, स्क्रीन के ऊपर आप डिस्प्ले करेंगे एंड देन LOC को फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ाएंगे, दैट इज 8992, ओके। सो यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ गया 8996, इससे पहले क्या था, दैट इज 8996। अब आप देखेंगे यहाँ पे 8992 यहाँ पर आ गया। इट मीन्स दिस पॉइंटर इज डिलीटेड एंड एलओसी को आपने असाइन किया नेक्स्ट एड्रेस के ऊपर, सो इट विल एसोसिएट दिस एरिया, ओके। नाउ वंस अगेन चेक नल है नहीं, दिस इज 8992, so it is not equal to null. Now come to this portion, information को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेंगे, that is a 21, okay. Now come to next location, that is LOC is equal to LOC next, that is a 8988 यहाँ पर आ गया। so ये पॉइंटर आपका डिलीट हो जाएगा and it will assign to next location and check say LOC is null or not. So this is 8988, it is not equal to null, okay. So display this information, अब आप 15 को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेंगे एंड LOC को एडवांस करेंगे। राइट नाउ LOC is equal to LOC next. So what is LOC next? This entire thing is LOC, LOC next is null और असाइन कर रहे हैं LOC में, तो आपका यहाँ पे वैल्यू आएगा, यहाँ पे पॉइंटर है, it is equal to null. So this is deleted. Now once again come to the while loop, चेकिंग करिएगा, चेकिंग पार्ट में जाइए। What is this? This is null. Yeah, null is equal to null, यहाँ पे लिखा है null is not equal to null, so condition is false। अब while loop से exit करेंगे, okay। Now come to the now your task is over। तो सबसे पहले आपने क्या किया, 17 को डिस्प्ले किया, now 10, now 21, now 15। so इस तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया, okay। so today this is enough। Now in the next video, we will discuss the polynomial addition. So thank you.